Hello guys and welcome back. In my last video I had mentioned that I'll be making a video about what questions can be asked from the second chapter, that is the structure of chromosomes, cell cycle and cell division. We all know that the ICSE exam has been divided into two semesters. The semester 1 examination, which is of MCQ pattern, is in this coming November. So when we talk about MCQs, these questions can come from anywhere from that chapter or from the given syllabus. Literally we need to read the textbook line to line, because the possibility of the question coming from every corner of the book is very high. Therefore, without wasting any further time, let's dive into the textbook. All right, so in this we'll just discuss what can be asked in the what can exactly be asked when we are talking about this chapter. See, a lot of things are going to be asked, so let's prepare for that. Just give me a moment. I'll make some necessary settings so that I can mark things. All right. What are chromosomes? Look at this line here. The nucleus contains most of the cell's DNA, which is organized into discrete units called chromosomes. ये इसका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. They'll give you this whole sentence. They'll ask you choose from the correct following options. So this, if the nucleus contains the most of the cell's DNA, that is organized into discrete units called as dash. Answer is going to be chromosome. Again, the next one here, the complex of DNA and proteins is called dash. Complex and DNA and proteins is called as chromatin. Again, if we look here, if we look closely, yes, the chromosome word is derived from what? Chroma, that is colored. Soma is colored. Sorry, soma is body. So chromosome means colored body. ये question भी तुम लोगों को पूछ सकता है. What does chromosomes mean? Next is, what are chromosomes? Dash are highly coiled condensed chromatin fibers. Chromosomes आ सकता है, या chromosomes are highly coiled and condensed dash. तो यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर्स आएगा. कैसे? एक सेंटेंस को बहुत सारे वेज में ट्विस्ट एंड टर्न करके क्वेश्चंस आएंगे, आ सकते हैं, आएंगे भी. Next one, chromosomes in animals was studied. Very important. When it was studied, with who studied it? Walter Fleming is the one who studied chromosomes for the first time. Where did he study chromosomes? In this salamander. इतने 1 2 3 एक इसमें पूछ सकते हैं, अलग अलग इसमें पूछ सकते हैं. Chromosomes was first studied in the year dash 1882. The chromosomes was studied first by a German scientist. उसका नाम क्या है? Walter Fleming. ये आ सकता है. किसमें स्टडी किया था? एनिमल्स के बहुत सारे नाम दे सकते हैं. इस पे आया, इस एनिमल में स्टडी किया था, ऐसे भी आ सकता है. नाउ इसमें और कुछ नहीं बोल सकते. ओके, नेक्स्ट इज क्रोमैटिन. अभी क्रोमैटिन में we know DNA, chromatin is made up of DNA and histones. उसमें DNA 40% का है और histone 60% का है. तो in chromatin they'll ask you DNA is how many percent, histone is how many percent. यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट, एक और शेप. किसने DNA का शेप किसने किया था? I mean, who studied about the shape? This is Rosalind Franklin in 1853 में इसने स्टडी किया था. इसमें 2-3 साइंटिस्ट के नाम है. वन इज रोजलिन फ्रैंकलिन, who studied the shape of the DNA and later उसका स्ट्रक्चर स्टडी करके वॉटसन एंड क्रिक ने सामने रखा था. तो however the structure, फाइनली स्ट्रक्चर किसने वर्कआउट किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने. शेप किसने बताया था? रोजलिन फ्रैंकलिन ने. एक और चीज, when did they win the Nobel Prize? 1962 में. Not that important, but we never know, MCQ है. Next one, yes, important. DNA is a macromolecule. पूछ सकते हैं DNA माइक्रोमोलेक्यूल है, प्रोटीन है, क्या है? तो DNA एक मैक्रोमोलेक्यूल है. DNA किसके साथ, किससे बना है?
DNA, a single strand of DNA is composed of repeating nucleotides made up of 3 components. मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब साथ आते हैं तो डीएनए बनता है. तो the DNA is made up of repeating units of dash, that is nucleotides. ये क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट्स क्या है? They'll ask you the phosphate group, sugar and the nitrogenous bases are the components of dash. इसका भी आंसर न्यूक्लियोटाइड्स ही आएगा. नेक्स्ट ओके, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है हमारे, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन एंड थाइमाइन, इसमें वी नो दैट जो दिस डीएनए स्ट्रक्चर लुक्स लाइक अ लैडर. मैंने लास्ट मेरे वीडियो में बताते हैं कि लुक्स लाइक अ लैडर. तो अंदर बाहर का जो है हमारा अरेंजमेंट, जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, इट लुक्स लाइक the stands of a ladder. The outer part, वो किससे बने होते हैं? नाइट्रोजनस, it is made up of phosphorus group and the sugar. It is made up of, इधर कहीं तो लिखा होगा देखो, the 2 strands make the ladder like arrangement with the nitrogen bases forming the rungs. मतलब बीच में लैडर के ये जो, इसको हम लोग रंग समझेंगे, तो बीच में है वो जो नाइट्रोजनस बेसिस है, जो बाजू में है, दिस इज द फॉस्फोरस ग्रुप एंड दिस इज द शुगर, दैट इज आउटसाइड. अंदर में क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस है. नाउ ये जो 4 नाइट्रोजनस बेसिस है, इसकी बॉन्डिंग है. एक तो पहली चीज, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बने हुए हैं. किसके साथ, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ बने हो गए, यहाँ पे एक क्वेश्चन फॉर्म होता है. Adenine pairs with thymine with 2 hydrogen bonds. Guanine pairs with cytosine with 3 hydrogen bonds. 2 क्वेश्चन इधर ही हो गए. हिस्टोन्स, अभी न्यूक्लियोसोम्स क्या है? Histones and other protein that help in coiling and the packaging of DNA into structural units called dash. एक क्वेश्चन न्यूक्लियोसोम्स वाला हो गया. न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोटाइड में कंफ्यूज नहीं होना है. Keep your concepts very clear. Now the DNA strands winds up. Okay. क्या wind up होता है histone molecules में? We have 8 protein molecules. Octahistomer, इसको हम लोग बोल रहे हैं. तो dash winds up. तो DNA winds up around histone proteins. बेसिक्स क्लियर हो गए तो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों को आंसर करने आएंगे. 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 8 प्रोटीन्स होते हैं. Therefore it is known as histone octamer. इसको डीएनए एंड हिस्टोन एक साथ आके बनता है न्यूक्लियोसोम. अभी न्यूक्लियोसोम्स, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स एक साथ आएंगे और कंडेंस, कॉइल हो गए, बहुत हाई लेवल की कॉइलिंग होगी, तब जाके बनेगा क्रोमैटिन. अभी देखो इधर, ईच डीएनए सेल्स अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर्स ऑफ डीएनए. इसमें इतना कुछ खास नहीं है. ये भी पूछ सकते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द ह्यूमन इज ओनली अबाउट 6 माइक्रोमीटर. ये एक इंपॉर्टेंट है. Therefore the DNA needs to be condensed in order to be fit. Typically कुछ भी नहीं दिख रहा है इधर मुझे. Given high dramatic representation of the sequential condensation of DNA into. अच्छा, ये मेरे पिछले वीडियो में भी है. सबसे पहले डीएनए होता है. डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर को वाइंड अप होके एक न्यूक्लियोसोम बनता है. बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स एक साथ आने के बाद क्रोमैटिन फाइबर बनता है. सी क्रोमैटिन फाइबर इधर से देखो, डीएनए हिस्टोन के साथ न्यूक्लियोसोम बनेगा. न्यूक्लियोसोम बहुत कॉइल्ड एंड सुपर कॉइल्ड होने के बाद क्रोमैटिन फाइबर बनेगा. क्रोमैटिन फाइबर्स के साथ के बाद क्रोमोसोम्स आता है और क्रोमोसोम्स के बाद क्रोमैटिड्स आते हैं. तो ये सीक्वेंस तुम लोगों को पूछ सकते हैं. दे कैन आस्क यू दिस सीक्वेंस, कौन से सीक्वेंस में बनाया गया है ये. ऑलराइट, सीक्वेंस पूछ सकते हैं तुम लोगों को. क्रोमोसोम्स लाइक डीएनए आता है, फिर न्यूक्लियोसोम आता है कि क्रोमैटिन फाइबर आता है. ये जंबल करके तुम लोगों को क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और each chromosome in its condensed form is visible during the start of the cell division. कब दिखते हैं क्रोमोसोम्स? ओनली ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन. एक और क्वेश्चन हो गया. पॉइंट ऑफ अटैचमेंट सेंट्रोमर है. अभी जब सिखा रही थी मैं, तब
सेंट्रोमर और सेंट्रोजोम में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था। सेंट्रोजोम कहाँ पे आता है? सेल डिवीजन के वक्त आता है, जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को साथ में जोड़े रखता है, दैट इज द सेंट्रोमर। नाउ each chromosome centromer is located in the particular site. इसका ये क्या है? that the centrosome also serves to attach the spindle fibers during the division. That serves for the sites of attachment for the spindle fibers. ऐसे आ सकता है. After the completion of the cell division, chromatids decondense, revert it into big long fiber thread like chromatin fiber. This could be many chromatin fibers inside the nucleus as the number of chromosomes that appear during the cell division. ठीक है, important one. Gene. Dash is the specific sequence of nucleotides on a chromosome that encode particular protein. ऐसे की ऐसी definition आ सकती है, otherwise they'll give you dash जहाँ पे आंसर जीन होना होगा, और नहीं तो they'll give you gene is और आगे उसकी तुम लोगों को डेफिनेशन सिलेक्ट करनी होगी. तो फॉर दिस, इवन इफ योर पेपर इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तुम लोगों को कुछ प्रॉपर डेफिनेशंस आना बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर गिविंग दैट वे. जो सैंपल पेपर था, सैंपल पेपर में भी उन लोगों ने मेंशन किया था. The units of heredity which is transformed from parents to offsprings, responsible for some specific characters of the offspring. Okay, इसमें DNA फिंगरप्रिंटिंग तो सिलेबस में नहीं है, तो we'll just skip it. Okay, need for cells में for the growth replacement 2 million नहीं, इसमें इतना कुछ नहीं है. for repair, for reproduction takes place through the activity of dividing cell. Amoeba just divide to produce two similar independent cells by mitosis. Okay, question, amoeba और बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करते हैं? माइटोसिस आंसर होने वाला है, बिकॉज दीज आर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स विच डिवाइड एसेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस. ये आ सकता है. इन हायर फॉर्म्स लाइक banyan tree मियोसिस होता है. ठीक है, ये मियोसिस का तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. अमीबा और बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करते हैं? द स्पर्म्स इन द सेल रिसीव ओनली हाफ. ओके, ये तो सारा मियोसिस का हो गया. ये जो इस सेल्स के बारे में है ह्यूमंस का, ये तो जेनेटिक्स में भी है. सो वी लुक एट दिस पार्ट इन जेनेटिक्स. ये पार्ट हम लोग जेनेटिक्स में देखेंगे. सेल साइकिल. In order for the cell to divide, they must complete several tasks. Synthesize material like protein, RNA, and duplicate DNA before cells perform the task of organized predictable series of events. अच्छा, सेल साइकिल क्या है? बहुत कोने में है ये, इसलिए we tend to overlook it. तो ये सेल साइकिल को भूलना नहीं है. Cells perform these tasks in an organized predictable series of events, which is called as the cell cycle. Which is called as dash. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. नहीं तो सेल साइकिल की वाइस वर्सा डेफिनेशन तुम लोगों को सिलेक्ट करने लगा सकते हैं. The cell cycle is a series of events that takes place in a cell leading to the duplication of its DNA and the subsequent division of the cell to produce two daughter cells. ठीक है, सेल साइकिल का ही है, इसको भी पढ़ लो. ओके, सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस. एक है इंटरफेज, दूसरा है एम फेज और द माइटोसिस. तो नॉन डिवाइडिंग फेज कौन सा है? ऐसा क्वेश्चन आएगा, विच इज द आंसर इज गोइंग टू बी इंटरफेज. एंड कौन सा डिवाइडिंग फेज है ये तो पता चलता है कि इट इज माइटोसिस. तो ये इंपॉर्टेंट है. अ नॉन डिवाइडिंग फेज इज डैश इन द सेल साइकिल, इट इज द इंटरफेज. अभी इंटरफेज में two daughter cells are produced from a mother cell. Okay, during this phase they prepare the next generation since no external, but in reality it is not true. It is quite active during the interphase by synthesizing more DNA. Give reason kind of वो जो आता है ना, assertion, if the reason and the statement is matching or no, उस kind of question में ये आ सकता है. It is called as a resting phase. एंड अगर ये ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू और फॉल्स भी हो सकता है, डिपेंड्स कैसे क्वेश्चन पूछते हैं. यहाँ का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. इतना ही बता रहा है ये इधर की इट इज कॉल्ड एज रेस्टिंग फेज, बट इट इज नॉट रेस्टिंग, इट इज प्रोड्यूसिंग और सिंथेसाइजिंग मोर डीएनए इन दिस. अभी देखो, ये इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू G1 S एंड ग्रोथ G1 S फेज एंड G2 फेज. तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, गिव द सीक्वेंस, G2 आता है पहले कि S आता है पहले कि G2 आता है पहले या G1 आता है.
तो इसका जो सीक्वेंस है G1 देन सिंथेसिस फेज दैट इज S फेज एंड G2 फेज, ये याद रखना है। यहाँ पे जितना कुछ भी हो रहा है दैट इज आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट डिवाइड हो रहा है, क्या क्या हो रहा है ये सारा अच्छे से पढ़ो, बिकॉज दे कैन आस्क यू वेयर डज इन द इंटरफेस वेयर डज द वॉल्यूम एंड और द सेल ऑर्गेनल्स रेप्लिकेट, किधर होते हैं? फर्स्ट आई एम सॉरी G1 फेज में होते हैं। इन विच फेज डज मोर डीएनए इज सिंथेसाइज्ड एंड क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड, ये आता है वापस S फेज वाला, यहाँ का भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। G2 फेज बहुत सिंपल है, दिस इज बिकॉज शॉर्टर है सबसे, एंड इट इज आरएनए एंड प्रोटीन्स आर गेटिंग सिंथेसिस फॉर सेल डिवीजन टू बी कंटिन्यूड। मतलब देखो, similarly even G1 phase में RNA and proteins are getting synthesized and even G2 phase में RNA and proteins है। तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि RNA and proteins are getting synthesized in the G2 phase because it is getting ready for the mitotic division, और यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको मोर डीएनए सिंथेसाइज करना है इसलिए, तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए, ये तो सिंपल है, इसमें मैंने पहले भी बताया था कि क्या पूछ सकते हैं कि इसका जो सीक्वेंस है, पहले डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, फिर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर अनवाइंड होता है, फिर न्यू उसके अगेंस्ट स्ट्रैंड्स ये हो जाते हैं एंड देन द टू स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड, इसका सीक्वेंस पूछ सकते हैं, इसमें कौन से सीक्वेंस में हो रहा है ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए, ये पढ़ना है अच्छे से। अच्छा, इसमें भी देखो, the brain and the other nerve cells once formed in the embryo do not divide further, that is permanent cells जो है, ये ब्रेन सेल और नर्व सेल कहाँ पे होते हैं? एम्ब्रियो में डेवलप होते हैं, एक बार एम्ब्रियो में डेवलप होने के बाद वापस नहीं उसका रीडिविजन या रिफॉर्मेशन नहीं होता है, therefore these are called as permanent cells also। तो कौन से परमानेंट सेल्स है या ब्रेन सेल और नर्व सेल कहाँ फॉर्म होते हैं? दैट इज एम्ब्रियो में, या एम्ब्रियो में फॉर्म होने वाले नर्व्स, सॉरी एम्ब्रियो में ना फॉर्म होने वाले सेल्स के नाम बताओ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। दैट सेल्स में डिवाइड ओनली वंस एवरी 2 years, ये लिवर सेल डिवाइड ओनली वंस एवरी 2 years, ओके 1 और 2 years में एक बार ही डिवाइड होते हैं लिवर सेल्स, एंड उसके बाद ये डिस्ट्रॉय होते हैं, फिर रिप्लेस होने वाले। कब, कितना टाइम है, ये पूछ सकते हैं। कौन से सेल्स है जो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं? तो सिंस्केल उसका आंसर होगा। अभी प्लांट्स और मेरिस्टेम, प्लांट्स में स्पेसिफिक ग्रोथ ही होती है, स्पेसिफिक इसमें जो मेरिस्टेम वाला पार्ट है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वहां पे ग्रोथ रैपिडली होती है। तो स्पेशलाइज्ड सेल्स, जर्मिनल सेल्स इन ओवरीज, सेल्स के नाम याद रखने हैं, जर्मिनल सेल्स इन एनिमल्स इन द ओवरी एंड एंथर्स इन द प्लांट्स, ये क्या करते हैं? मायोसिस हो जाता है, और सेक्स सेल्स भी बोलते हैं। अनकंट्रोल्ड नॉन स्टॉप साइकिल्स में लीड टू ट्यूमर दैट मे और नॉट बी कैंसरस। अनकंट्रोल्ड नॉन स्टॉप सेल साइकिल होती है तो क्या फॉर्मेशन होता है? एक तो ट्यूमर्स होने वाला है, ट्यूमर्स आर गोइंग टू रिजल्ट इन कैंसर, तो जो ट्यूमर्स फॉर्म होने वाले वो कैंसरस हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा बोल रहा है। सो अनडिवाइडेड, सॉरी नॉट अनडिवाइडेड, अनकंट्रोलेबल नॉन स्टॉप सेल डिवीजन लीड्स टू डैश, ट्यूमर हो सकता है, कैंसरस हो सकता है, इतने सारे ऑप्शन रहेंगे, उसमें से सिलेक्ट करो। ओके, चिल्ड्रंस बी ग्रो बिकॉज इन न्यू सेल्स आर कंटिन्यूअसली, ओके इसमें और हाँ, ये देखो माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में, सेल डिवीजन लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड दैट इज 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका माइटोसिस का डेफिनेशन हो गया हैप्लॉइड, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, इधर वैसे की वैसे ही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिटेन। तो माइटोसिस और मियोसिस के बारे में दे कैन आस्क यू विद रेफरेंस टू हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। तो माइटोसिस है तो डिप्लॉइड है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, मियोसिस है तो हैप्लॉइड है, n number of chromosomes, mitosis diploid, meiosis haploid. Okay, mitosis is the cell division in which one parent cell divides into two identical, dash is the cell division, ऐसा भी आ सकता है। The most important aspect of mitosis that the same, yes, most important aspect of chromosome क्या है, sorry most important aspect of mitosis क्या है?
दे विल गिव यू अ नंबर ऑफ उसके जो ये है क्या बोल सकते हैं सिग्निफिकेंसेस, वो देके तुम लोग को सिलेक्ट करने बोल सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है, द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज मेंटेन्ड इन ईच ऑफ द सेल डिविजन। ये हो गया। अभी माइटोसिस के फेजेस है। क्रायोकाइनेसिस मतलब क्या, ये पूछ सकते हैं। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, क्रायोकाइनेसिस के 4। यस, इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये याद रखना है हम लोगों को। ये सीक्वेंस में ही याद रखना है। आई हैव गिवन द सीक्वेंस इन क्लास, कैसे याद रखना है। करेक्ट। प्रोफेज, मेटाफेज, पहले प्रोफेज आता है, मेटाफेज आता है, एनाफेज आता है, टेलोफेज आता है। इसको याद रखना है। नाउ साइटोकाइनेसिस के बारे में शायद उन लोगों ने लास्ट में दिया है, तो हम लोग तब देखेंगे। प्रोफेज में और इसमें क्या क्या होता है, कौन से स्टेज में होता है। अभी एज सून एज दिस माइटोसिस स्टार्ट्स, माइटोसिस में इतने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आज को डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम पे जाएंगे हम लोग। देखो उसके पहले इधर क्या पूछ सकते हैं, प्रोफेज में कौन से इसमें क्रोमोसोम्स। इनिशियली इंटरफेज में क्या होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमैटिन फाइबर्स होता है। प्रोफेज में सबसे पहले ये कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो कौन से इसमें, प्रोफेज में। ये क्वेश्चन लिटरली फ्रॉम दिस माइटोसिस केस में ना हर एक लाइन क्वेश्चन बन सकती है। Each chromosome has already duplicated to form 2 chromatids। ठीक है, ये सब सेंट्रोसोम वाला हो गया। डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स भी इसमें होता है प्रोफेज में। एस्टर वाला पार्ट, एस्टर इज एब्सेंट ओनली aster is absent in plant cells and is present only in animal cells. They have mentioned it here. In animal cells they have either 1 or 2 centrioles. ठीक है। The number of fibers between is called the spindle fibers। ये भी ठीक है। इतने सारे, ये सिंपल है, इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं तुम लोग को। Dash the nuclear membrane and the nucleus disappear in which phase? Prophase में होता है आंसर। The duplicated chromosomes start moving towards the equator। ठीक है। मेटाफेज में क्या होता है, they'll ask you, अगर अच्छा बेस्ट इधर ही है हमारा। इंटरफेज में देखो, दे कैन गिव यू डायग्राम लाइक दिस। यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंटरफेज में क्रोमैटिन थ्रेड्स है, क्रोमैटिन नेटवर्क वैसे का वैसे है, कंडेंस नहीं हुआ है। एक सेंट्रोसोम दिख रहा है इधर कंटेनिंग, सेंट्रोसोम है ये कंटेनिंग सेंट्रियोल्स, और न्यूक्लियोलिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारे के सारे विजिबल है। आता है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होने वाला है, सबसे पहले कंडेंसेशन होने वाला है। मैंने बोला पहले ही। कैसे आइडेंटिफाई करना है, देखो ऊपर से प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है, ये भी सर्कल हो तो प्लांट सेल है, सॉरी सर्कल हो तो एनिमल सेल है, स्क्वायर हो तो प्लांट सेल है। बट शेप पे से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक चीज, ये सेंट्रोसोम होता है, ये एब्सेंट होता है प्लांट सेल में। ठीक है, नो सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट। इससे भी तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है। नेक्स्ट वन आ गया हमारा, ये इंटरफेस होगा। ये देखो प्रोफेस के बारे में, इसमें से सारे के सारे क्वेश्चंस लिटरली दे कैन आस्क यू, कुछ भी पूछ सकता है। ये बहुत ही अच्छे से करना है इसके सारे, कि प्रोफेस में क्या होता है। यहाँ पे आई एम फोकसिंग ऑन डायग्राम बेस्ड, कि कैसे तुम लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, अर्ली प्रोफेज है कि लेट प्रोफेज है कैसे। अभी देखो ये अर्ली प्रोफेज वाला, इसमें क्या हो रहा है, ये सेंट्रियोल्स हैव स्टार्टेड टू मूव अपार्ट इधर। ये एक हो गया। क्रोमैटिन क्या बोलते हैं, इंटरफेज में यहाँ पे सेंट्रोसोम था, इधर सेंट्रियोल्स, 2 सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट व्हिच हैव स्टार्टेड टू डिवाइड, स्टार्टेड टू align in the opposite poles। nucleolus, nuclear division, nucleolus and nuclear membrane start to disappear। ये तुम्हारा अर्ली प्रोफेज हो गया। सेम इधर भी हो रहा है, बस इधर एनिमल सेल्स में एस्टर होता है, प्लांट सेल्स में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल एब्सेंट है पूरा, तो उसका कुछ संबंध है ही नहीं। एस्टर्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट थिंग इधर क्या है हमारी, लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या दिखता है कि ये जो सेंट्रियोल्स है ये पोल्स में पहुंच गए हैं इधर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। एंड स्पिंडल फाइबर्स जो है हमारे, इट स्टार्ट्स टू अपीयर। ये सारा प्रोफेज वाला है। मेटाफेज में तो मेटाफेज बहुत सिंपल है। मेटाफेज में क्या होता है, दिस क्रोमोसोम्स गेट अलाइंड इन द मिडिल, ऐसे इधर, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये सेंट्रोमर को अटैच होते हैं, इक्वेटर पे लाइन अप होते हैं बीच में, और सेंट्रोसोम, ईच क्रोमोसोम इज अटैच्ड
क्रोमोसोम में सेंट्रोमर है, सेंट्रोमर को स्पिंडल फाइबर अटैच किया है। एनाफेज, अभी एनाफेज में भी फर्स्ट एनाफेज है, सॉरी अर्ली एनाफेज है, लेट एनाफेज है। लेट एनाफेज में सॉरी अर्ली एनाफेज में क्या हो रहा है, दीज क्रोमैटिन फाइबर्स आर पुलिंग द क्रोमोसोम्स अपार्ट। स्टार्ट होता है इधर एक दूसरे को स्प्लिट करना इन दोनों को, एंड दे आर हेडिंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। ये अर्ली में है। लेट प्रोफेज में दे हैव रीच्ड द ऑपोजिट पोल्स ऑलमोस्ट, एंड इसमें फरोइंग स्टार्ट होता है। फरोइंग स्टार्ट होता है, ये हो गया हमारा एनाफेज। अगेन मैं बोल रही हूँ यहाँ के सारे अच्छे से पढ़ना है, लिटरली एवरीथिंग। लेकिन इसमें ना हर लाइन में क्वेश्चन बनेगा, हर लाइन में। टू स्टडी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने फोकस ज्यादा डायग्राम बेस पे किया है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट ये जो लेट एनाफेज है यहाँ पे फरोइंग शुरू होना स्टार्ट होना। द फरोइंग स्टार्ट्स इन द सेल मेम्ब्रेन इन द मिडल इन एनिमल सेल्स, और सेल प्लेट में यहाँ से होती है। तो कहाँ पे फरोइंग स्टार्ट होता है, एनाफेज में स्टार्ट होता है, और डीप किस में होता है, टीलोफेज में होता है। टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स रीच द ऑपोजिट पोल। अभी फाइनली टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैव रीच्ड द ऑपोजिट पोल्स। ये स्पिंडल फाइबर्स जो है यहाँ के डिसअपियर हो गए हैं। क्रोमैटिन्स थिन आउट, ऑब्वियसली chromatids होते हैं, that chromatid thin out and they become chromatin fibers again. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस रीअपियर होते हैं। डिसअपियर और रीअपियर में अच्छे से पढ़ना है, ऐसे ब्लाइंडली मत रीड करो, बिकॉज यहाँ पे भी टेंड टू गड़बड़ में हम लोग कुछ और ही पढ़ लेते हैं। सो टेलोफेज में रीअपियर होते हैं, सेंट्रल सॉरी न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर इन द टेलोफेज। ऑन द अदर हैंड प्रोफेज में डिसअपियर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फरोइंग कंप्लीट हो जाती है। अगेन ये जो है डीपनिंग शुरू होती है। इनिशियली उधर शुरू हुआ था एनाफेज में, लेट एनाफेज में। यहाँ पे इट स्टार्ट्स टू गेट द फरो स्टार्ट्स टू डीपन। ऑन द अदर हैंड प्लांट सेल में क्या हुआ है, ये जो प्लेट फॉर्मेशन हो रही है, प्लेट फॉर्मेशन भी कहाँ से होती है, फ्रॉम द मिडिल टुवर्ड्स द पेरिफेरी। मिडल से शुरू हो रहा है एंड देन बाहर जा रहा है। सो फ्रॉम द मिडिल टुवर्ड्स द पेरिफेरी हो रहा है। लास्ट इज द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज द डिविजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। क्रायोकाइनेसिस इज द डिविजन ऑफ द न्यूक्लियस। दे कैन आस्क यू दिस आल्सो, व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? द डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज डैश। फाइनली साइटोप्लाज्म सेपरेट होता है, सेल डिवीजन खत्म हो गया। सेल डिवीजन इसमें एनिमल में फरोइंग के साथ होता है, प्लांट्स में प्लेट फॉर्मेशन के साथ होता है। ये भी होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनाफेज ओके, यहाँ पे भी तुम लोग पढ़ लो, मैंने इन शॉर्ट तो बहुत बताया है इसके बारे में। यू कैन रेफर टू माय प्रीवियस वीडियो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ से जो माइटोसिस है, यहाँ से कुछ भी इतने सारे क्वेश्चन दे कैन फॉर्म, उल्टा सीधा करके सब 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 पूछेंगे। साइटोकाइनेसिस वाला हो गया। क्रायोकाइनेसिस, ऑल द न्यूक्लियस चेंज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन कलेक्टिवली टर्म एज क्रायोकाइनेसिस। क्रायोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय डैश। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन जाता है। बेसिकली आई एम टेलिंग यू, पूरी टेक्स्ट बुक ही तुम लोग को पढ़नी है, इसलिए आई एम सिटिंग विद यू ऑल नाउ एंड टेलिंग यू ऑल कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आ सकता है। एस्टर द फॉर्म ओके, ये डिफरेंस तो मैंने आधा जब बोल रही थी ये करना है अच्छे से, इसमें भी क्वेश्चन आएंगे। मैंने जब एक्सप्लेन कर रही थी तभी मैंने डिविजन आई एम सॉरी डिफरेंस तुम लोगों को ये किया था। ओके, द पेरेंट सेल लूजेस आइडेंटिटी, डॉटर सेल्स, ठीक है। सिग्निफिकेंस, एक और चीज व्हाट मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि दे विल गिव यू ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डैश। तो ऑब्वियसली माइटोसिस। एक और चीज की मेंटेन, ये जो क्रोमोसोम नंबर है ये सही हाफ हो रहा है कि मेंटेन हो रहा है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी पूछ सकते हैं। देन ये तो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, ये रीड कर लेना। यहाँ पे भी पूछने जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो गो थ्रू दिस वन। जैसे कि आरबीसी टेक्स वन, लाइफ स्पैन इसकी 120 डेज है, बोन सेल्स 10 इयर्स के बाद, ये पूरा करना है अच्छे से। पूछे या नहीं पूछे, पढ़ के रखो, रीड इट। मियोसिस, मियोसिस क्या है? मियोसिस इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन भी उसको बोलते हैं। तो अगर मियोसिस के जगह पे वो रिडक्शन डिवीजन नाम का वर्ड यूज करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है।
Meiosis, meon means to lessen, referring to the reduction. ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका मतलब क्या है? कहाँ पे होता है ये? गैमीट्स में होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है, टेस्टिस एंड ओवरीज इन ह्यूमंस एंड स्पर्म एंड ओवर इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ये भी हुआ. इट टेक्स प्लेस कहाँ पे होता है? एंथर में और पोलन ग्रेन्स एंड द ओव्यूल्स. In the flowering plant, it takes place in the anthers and the ovary to produce pollen grains. Anther, pollen tube. करेक्ट. ये जो स्पर्म्स और ये है, सॉरी किधर गया वो? इन द फ्लावरिंग प्लांट इट टेक्स प्लेस इन द एंथर एंड द ओवरी टू प्रोड्यूस. यस, एंथर और ओवरी में पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स बनते हैं, ऐसा है. एंथर में पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ओवरी में ओव्यूल्स बनते हैं. दिस इज द male and the female, male part and the female part of the flowering plants, male gamete and the female gamete I meant. The most significant part is the number of chromosomes gets halved. halved हो जाता है number of chromosomes. ये भी important है, मतलब माइटोसिस में डिप्लॉयड जब इनिशियली होता है, मैंने ये एक्सप्लेन किया है, इनिशियली इट इज एवरीबडी इज डिप्लॉयड. जब मियोसिस होता है तो 2n से n हो जाता है, दैट इज डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाता है. वापस फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओरिजिनल नंबर स्टोर होता है. ये हो गया. इसमें भी ये सिलेबस में नहीं है तो यू कैन जस्ट स्किप दिस. आई फील जो नहीं है वो मत करो, जो है उस पे ज्यादा फोकस करो. मोर अबाउट मियोसिस. हाँ, रिडक्शन डिविजन. However, just to know the basics about meiosis, it is completed in two divisions, meiosis 1 or meiosis 2. It is the first reduction division. The first reduction division and the second mitotic division. पहले reduction division होता है और second mitotic division होता है. ये क्वेश्चन भी आ सकता है. In meiosis, first is the meiosis division 1 and mitotic division. कौन सा आता है पहले? ऐसे भी पूछ सकते हैं. Prophase of meiosis 1 corresponds most closely to the G2 phase. ये भी पढ़ के रख लो. Significance again is going to be important. Chromosome number is half. ये बहुत बड़ा है. बाद में फर्टिलाइजेशन होने के बाद 2n नंबर रिस्टोर होता है. अभी इट प्रोवाइड्स द मिक्सिंग अप. ये भी इंपॉर्टेंट है, मिक्सिंग अप ऑफ जीन्स, क्योंकि दो अलग अलग पेरेंट्स के जेनेटिक मेकअप, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का जेनेटिक मेकअप इज कमिंग टुगेदर. इट इज गोइंग टू फॉर्म अ कंप्लीटली न्यू ह्यूमन बीइंग. तो मिक्सचर एंड वेरिएशन तो होने ही वाला है. So the parental and the maternal and the paternal chromosome get mixed up during the first important maternal and the paternal chromosomes. कहाँ पे होता है उसका मिक्सिंग? फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन में होता है. ये हम लोगों ने नहीं देखा था, ये हम लोग ऊपर से जब कंसेप्ट पढ़ते हैं तो इतना डीप में नहीं जाते हैं मोस्टली. तो ये जो क्रॉसिंग ओवर या जो मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, ये फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन में होता है, as they separate from the homologous pairs. While the maternal and the paternal chromosomes are separating, the chromatin material very often gets exchanged between the two members of the homologous pairs. Homologous pairs के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होते रहता है. अभी मैंने सिस्टर क्रोमैटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बारे में बताया था. ये जो सेम कलर के हैं, एक सेंट्रोमर से अटैच है, दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स. ये दोनों भी सिस्टर क्रोमैटिड्स है. और एक इसका क्रोमैटिड और ये इसका क्रोमैटिड जब क्रॉस ओवर होते हैं, इसको नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं. इसको ही, इसके वजह से ही क्रॉसिंग ओवर होता है. एंड ये क्रॉस ओवर होने के बाद ये बन रहा है, ये जो पार्ट या स्ट्रक्चर क्रॉस जैसा बन रहा है, इसको चियासमा कहते हैं. तो ये भी इम्पोर्टेंट है. chiasma is just the structure cross like structure is called chiasma. and उधर क्या हो रहा है? जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है. ये दोनों भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स है. this is one homologous chromosome, this is other homologous chromosomes. They crossing over. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, मतलब they are getting mixed together, जेनेटिक मेकअप उसका मिक्स हो रहा है. एंड फाइनली दिस इज द रिकॉम्बिनेशन वाला क्रोमोसोम. ये हो गया. ये डिफरेंस
डिफरेंस तो करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. The mixing of genes during mitotic division provides the innumerable variation in the progeny. This is how the children of the same parents, howsoever similar, are different from each other in certain respects. Yeah, so we agree to this. We may look similar to our siblings, but we are in person very different from each other. That is because genetics plays its role. अभी ये मैंने लास्ट इसमें बताया है, ये जो ब्लैक ब्लैक में है सारा इंपॉर्टेंट है. रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, किसके लिए होता है, कितने टाइम के लिए होता है, कितने डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स किस में आता है, माइटोसिस में आता है, हाफ बस मियोसिस में आता है, डिप्लॉइड में माइटोसिस में डिप्लॉइड सेट होता है, मियोसिस में हैप्लॉइड सेट होता है. नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन एक ही है, इधर इधर 2 न्यूक्लियर डिविजन है. रैंडमली असॉर्टेड सॉरी आइडेंटिकल होते हैं जो माइटोसिस वाले, और मियोसिस में रैंडमली असॉर्टेड होते हैं. इतना सारा डिफरेंस है. ये डिफरेंस के जैसा नहीं पूछ सकते हैं, बट इसमें जो कंटेंट है, इस कंटेंट के बारे में बहुत सारा पूछ सकते हैं लिटरली. और एक और चीज, ये पार्ट कभी भी इग्नोर नहीं करना, एटलीस्ट गो थ्रू इट. ये लास्ट मोमेंट पे बहुत हेल्प करता है, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन, कुछ अलग नहीं है. द सेम थिंग होल चैप्टर में जो हुआ है उसको ही हम लोगों ने शॉर्ट करके उधर रिवीजन किया होता है. सो ऑलवेज रीड दैट पार्ट एज वेल. तो दिस इज हाउ वी वेंट लिटरली लाइन टू लाइन फ्रॉम दिस चैप्टर. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड क्या आ सकता है, कौन सा. लिटरली द होल lesson is going to be important, क्योंकि कौन से भी कोने में से तो they can ask all question whatever is included in the syllabus. ठीक है, इसमें से कुछ चीजें आई गेस एक्सक्लूड भी किया होगा इस ईयर के सिलेबस में, बट इट डजंट मैटर. रीड द टेक्स्ट बुक thoroughly. That is the only key to get literally out of marks in bio. So I hope this video has cleared your perspective कि कौन से questions आ सकते हैं, कैसे किस type में आ सकते हैं. I've tried my best and I hope you all have enjoyed this video and have gained the insight of what kinds of questions can be asked. All right, that's the end of the video. Meet you all soon with the next video. Bye bye.